सर जी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे फाइंड द मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज नॉर्मल फॉर्म। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 7th ਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਕਾਲਮ ਨਾ ਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿਊ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਰੇਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪੀ ਏ ਕਿਊ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਉਹ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਛ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲੂ ਟਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ WhatsApp 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 80 ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 80 ਚੋਂ ਜੇ 2 ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ 78 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, 2 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ 80 ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਅਲਾਉਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੀ ਏ ਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, 1 -1 2 4 2 -1 2 2 2 -2 0।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुण ये भी पंगा भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लईए किहड़ी की 3x3 लईए ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਰੋਜ਼ ਦਾ 4 ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3x3 ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ 4x4 ਰੱਖੋਗੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मूरली 3x3 पिछली 4x4 ये रख ली विचाले की है ए फिर ए ठीक है जी हुण एक काम जदों इत्थे मैं 3x3 रखी इत्थे मैं 4x4 रखी देखो 3 3 के बराबर है सो इन्हां दी प्रोडक्ट वैलिड है आंसर की आऊगा 3x4 पढ़िया है तुसीं क्लास में हुण जिहड़ी इन्हां दोवां दी प्रोडक्ट बनूगी 3x4 इत्थे की है 4x4 सो 3x4 ते 4x4 दी प्रोडक्ट वैलिड है आंसर की आऊगा 3x4 ये वाली मैट्रिक्स बन गई क्योंकि आइडेंटिटी का तो असर ही नहीं होता होंगे ये तो पक्का ही है डन ही है खत्म ही है किस्सा इन्होंने दोवां की जो प्रोडक्ट करोगे की बचूगा ये विचारणी मैट्रिक्स यही रह जानी इन्हें कोई असर ही नहीं करना सो इन्होंने दोवां का आंसर आ जो ये आऊगा इन्होंने दोवां की प्रोडक्ट का आंसर ये पिया बिच ही पिया इन्होंने दोवां की प्रोडक्ट का आंसर वो भी यही है आइडेंटिटी का कोई है ही नहीं सो ठीक है फिर आप इदा ही करेंगे अच्छा हुण अगला स्टैप सब तो मेन पहला तो उपरला जो भर दो सारा एक ही क्वेश्चन करवाना रहा सारी वीडियो क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है एक ही होंगे पर एक्सरसाइज तुम सारी करनी है जे ना होया मैं पूछ रहे हो जो क्लास लगती है राजे बहुत कुछ आप भी डिस्कस कर दें पर हुण प्रॉब्लम ये आती है बच्चे अटेंडेंस दूसरी क्लास के मैसेज आ जाते हैं वो खराब हो जाता है अच्छा हुण सब तो पहले रो ऑपरेशन लाओ रो ऑपरेशन वास्ते नॉर्मल फॉर्म च इनू कन्वर्ट करना शुरू कर देना तुसीं इनू रो ऑपरेशन जेड़ा भी इहदे ते लाओगे वो मूरली इस मैट्रिक्स ते लगूगा कॉलम ऑपरेशन जेड़ा भी इहदे ते लाओगे वो पिछली मैट्रिक्स ते लगूगा बस एंड ते रो ऑपरेशन जिन्ने भी लगी गए इहदे च चेंज हो जाऊगा ना इन्हें पी बन जाना कॉलम ऑपरेशन जिन्ने भी लगी गए इन्हें क्यू बन जाना इधर नॉर्मल फॉर्म बन जूगी ए बन जूगी पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म सो आप पी ते क्यू लिखना सी सच दैट पी ए क्यू की होवे नॉर्मल फॉर्म सो लभ गई सो अपने को की होगा सब तो पहला इन्होंने ऑपरेशन लाया नॉर्मल फॉर्म बनाने वास्ते मैंने इन्होंने जीरो बनाना पड़ा पहला सो मैं बना लिया फिर R2 फिर लाइए R2 माइनस 4R1 फिर R3 माइनस 2R1 लो जी लाते अच्छा हुण इधर की बन जाऊगा 1 0 0 -1 2 1 ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ -4 ਨੂੰ प्रोडक्ट करके ये ऐड किया हुआ अपना देखो सो ये -4 4 2 6 -4 -9 -4 -2 हो गया -4 सीगा फिर इतने 6 थोड़ी आना वा इन्होंने 6 लिखा है -4 हाँ -4 ऊपर -1 इतने -1 फिर इतने 6 आऊगा अच्छा उस तो बाद इतने -2 ना प्रोडक्ट करके इतने ऐड किया -2 2 2 4 फिर -2 -6 ते इतने 2 ये चेंज होया हुण यही रो ऑपरेशन इस ते लाना इस मैट्रिक्स ते इन्हां मगरले इहनूं मगरली नहीं छेड़ना इहनूं तां छेड़ना ही नहीं राजे ये जिहड़ा विचाले पई है इहदा ही पई रहना छेड़ना ही नहीं पिछली नूं बाद छेड़ांगे पहला मूल 1 0 0 रो 2 ते रो 3 च चेंज होया पहली तो उम्मीद लगती रो 2 च की चेंज होया R2 -4R1 यानी कि इनू -4 नाल प्रोडक्ट करता ते इहदे च ऐड करता करो की आऊगा इथे बनूगा -4 फिर
1 फिर 0। ठीक है, उस तो बाद ये ऑपरेशन की गल करो की है R3 चेंज होया -2 R1 -2 ना प्रोडक्ट करके ये ऐड करता की आऊगा -2 फिर इथे 0 इथे 1 ये मैट्रिक्स ए बन गई। ए आ जी ये प्यार ये ज़्यादा बैटर कर रहे हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स में आप कुछ करना ही नहीं, इन्हों ए ही लिख दें क्यों एडी वड्डी दोबारा लिखनी एंड वाली जी मैट्रिक्स उन्होंने सेम क्योंकि वो कुछ किया ही नहीं आप। हुण अगे अगली बार तुसी कॉलम ऑपरेशन होना 100% अगला कॉलम ऑपरेशन ही होना चाहिए, ये याद रखिए। कॉलम ऑपरेशन की है यही हेल्प ना इनू 0 बनाओ की आऊगा C2 प्लस C1। ठीक है, फिर C3 माइनस 2C1 फिर C4 प्लस C1 ये 3 ऑपरेशन आ गए। ला दो फिर की आऊ 1 0 0 ये की हो गए 0 ये भी हो 0 ये भी हो 0 सोचण दी लोड़ सोचण दी ही नहीं लोड़। अच्छा ये गल करिए हम ये की इफेक्ट पऊगा एक दो स्टेप च तुहानू समझ लगू ये की इफेक्ट पऊगा। C2 नू चेंज किया किवें इन्हां दोहां नू ऐड करके ये हो गया 0 इन्हां दोहां नू ऐड करोगे 6 इन्हां दोहां नू 4 ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। C3 ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ C1 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ -2 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜਤਾ 0 ਬਣਿਆ -2 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 0 ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜ ਦੋ ਕੀ ਆਇਆ -9 -2 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜਿਆ ਕੀ ਆਊਗਾ -6। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ यानी कि कॉलम ऑपरेशन जो आप लाने ये 0 हो जाते हैं। आ बॉक्स आ जो सेम ही प्या रहा आ लास्ट वाला भी करो C4 की है इन्होंने दोनों ऐड कर देना। सो इतने इन्होंने ऐड किया 0 एक आऊगा 6 एक आऊगा 2। देखो ये वाला जो ये बॉक्स इतने प्या सीगा ये सेम ही नहीं बन गया। यानी कि पहले स्टैप च आप रो ऑपरेशन की हेल्प नाल ये इन्होंने 0 किया उदों ये एंट्रियां बदल गई सी उदों बदलियां सी एंट्रियां नवीं आईयां सी। मैं इत्थे तुहानूं पुछा सी ना इत्थे 6 किवें बन गया इत्थे 2 किवें बन गया उदों बदलिया सी ये पर जो कॉलम ऑपरेशन लाया उदों ये बॉक्स ते कोई इफेक्ट नहीं पिया। चलो इहनूं रट्टा ना मारो समझो इस चीज़ नूं प्रैक्टिस नाल जदों काफ़ी प्रैक्टिस होगी उदों तुहाडे उंगलां ते जाना चाहिए एक क्वेश्चन ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां तुहानूं दिसी जांदियां भी ये 0 ना गुणा करके ये ऐड करना की होगा सेम ਉਹੀ प्यार होगा क्यों कोई इफेक्ट होगा। अच्छा हुण इधर गल करिए ये मैट्रिक्स में हम नहीं आप छेड़ना लाए है कॉलम ऑपरेशन ये लिखेंगे इनू मैं लिख लो 1 0 0 जो इतने पई है -4 1 0 -2 0 1 ये ऑपरेशन लाओ 10 ऑपरेशन ने की है। देखो C1 च कोई चेंज नहीं सो पहला कॉलम नहीं आऊगा पहला है फिर C1 ते C2 नू जोड़िया C2 नू चेंज किया इन्हां दोहां नू जोड़ता ये होगा 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0। C3 किवें चेंज किया होया C3 -2 C1 मतलब C3 नू इहनू -2 नाल गुणा करके इहदे च जोड़िया कि आऊगा -2 -2 नाल गुणा करके इहदे जोड़िया -2 नाल गुणा करके इहदे जोड़िया -2 नाल गुणा करके इहदे जोड़िया। ठीक है जी उस तो बाद अच्छा हुण जिहड़ा बॉक्स में इत्थे बनाया वो इत्थे ना बनाउण लग जाओ। मैं सिर्फ यही गल की है आप ही अज्यूम ना करया करो राजे जिन्ना कि मैं बोलिया उन्ना कि बोला ये आपे पता लग जाएगा तुहानूं ये बॉक्स बुक्स जे ना जो 10 क्वेश्चन कर लिया आपे दसन लग जाने तुहानूं किहड़े बॉक्स कित्थे बनदे आ किहड़े एलीमेंट ते इफेक्ट पैंदा हुंदा किहड़े नूं आपां बाहर एवें बिना देखे उवें लिख सकदे आ। हुण जिवें पहले ये ऑपरेशन लाए आ ऑपरेशन इस तरीके नाल लाए भी ये 0 बन जाण सो कई स्टूडेंट की करदे वो वहमी हुंदे आ वो की करनगे इन्हों प्रोडक्ट कर देखी जाएंगे फिर जो कि -1 ते +1 0 फिर ये ऑपरेशन ये भी ला के देखेंगे -2 ते +2 0 यार आप ऑपरेशन ही आए लाए भी इतने 0 बन सो इतने 0 0 0 लैके खत्म करो ना अगले पे काम करो वही ये ध्यान रखो बहमी नहीं होना। अगे आए C4 ते C1 नूं ऐड करके C4 चेंज किया इन्हां नूं ऐड किया इन्हां नूं 0 इन्हां नूं 0
अगली मैट्रिक्स। हुण फिर तुरे चलो अगे नॉर्मल फॉर्म बना देनी है। इधरले पासे नॉर्मल फॉर्म, उधरले पासे पी ए क्यू। इधर तुहाडी पी बन रही है, विचाले तुहाडी ए पई हुई है, इधर तुहाडी क्यू बन रही है, इधर तुहाडी नॉर्मल फॉर्म बन रही है। यही क्वेश्चन सी। हुण इत्थे जाना, पहले दिन 1 बनवाना, R2 ऑपरेशन लाओ, R2 1/6 R2 लो जी, निक्का जिहा ऑपरेशन आ, सारा दोबारा लिखना पड़ा। 1 0 0 0 पहला क्वेश्चन आ कहाँ लिखना लगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3/2, ये आ जाएगा 1, ये होगा 0, ये होगा 4 -6 2, ये उमें प्यार होगा। हुण रो ऑपरेशन किहदे ते लाउणे इहदे ते यार की आऊगा 1 0 0 6 ना डिवाइड कर दो सेकंड रो, -3/2 1/6 0 -2 0 1, ये उमें पई आ, ये वड्डी सारी मैट्रिक्स है जिहड़ी ये भी उमें पई है। बहुत ये क्वेश्चन है ना जिहड़ा एक तरह ना इरिटेटिंग जिहा करने वाला क्वेश्चन है। इरिटेट क्यों करता है, क्योंकि आप एक डाटा इकट्ठा करके सैकेंड परसन नूं दे रहे हैं, डाटा इकट्ठा करके। क्यों किवें पी ते क्यू च पी अपने आप च एक मैट्रिक्स नहीं है, ये 10-12 रो ऑपरेशन है। क्यू एक मैट्रिक्स नहीं है, 10-12 कॉलम ऑपरेशन है। इन्हों रटे लवा थोड़ी सकते सैकेंड परसन सीधा पी दसो क्यू दसो घरे आ जाओगे तुम दस के, आपे अगला प्रोडक्ट करके नॉर्मल फॉर्म बना दूंगा। प्रॉब्लम यह है भी तुहानूं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो करनी हुई है फिर ही BSc होगी। हो गया है। अच्छा हुण इहनूं 0 बनाओ, फिर रो ऑपरेशन लगूगा R3 -4 R1। थोड़ा जिहा औखा, एक क्लास 40 मिनट के लैक्चर एक ही क्वेश्चन होंदा। पहला तो मैं बहुत कोशिश करता होंदा सी भजा के करवा दा, पर मैनू आया भी हुण कोई ना, एक ही बहुत 0 हर महीना करा दे, एक क्वेश्चन करा दे, समझ लग जाए ज़्यादा। जो प्रॉब्लम आई कोई इतने मैं सीधा 0 लिखता ना, आई तुहाडी आदत बन जाएगी। क्योंकि इसे 0 बनाने वास्ते तो -4 ना प्रोडक्ट किया, हम प्रोडक्ट करके दोबारा इन्हें सिर खपाई क्यों करनी। -4 नूं इहदे नाल प्रोडक्ट करो, देखो 6 0 लो, -4 नूं इहदे नाल प्रोडक्ट कीती -2। चलो हुण यही रो ऑपरेशन इहदे ते ला दो, की आऊगा 1 0 0 कोई चेंज नहीं, -3/2 1/6 0 कोई चेंज नहीं, क्योंकि R3 च चेंज आ गले पहलियां दो तो हमने आए। R3 की है -4 नूं प्रोडक्ट करके इहदे च ऐड किया होया की आऊगा फिर -6 0 1, ये तो कर लोगे। इहदे ते ये ऑपरेशन लाता पहली है, दूजी उम्मीद 1 1 -2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। हुण कॉलम ऑपरेशन की गल करो, कॉलम ऑपरेशन की है, इन्हों इहदी हेल्प नाल 0, इनू इहदी हेल्प नाल 0। सो C3 नूं चेंज किया C3 + 3/2 C2 है ना, C2 की हेल्प नाल कट रहे हैं। फिर C4 -C2 गल खत्म हो गई। सो अगले स्टेप की आऊगा 1 0 0 0 0 0 1, इत्थे की है 0 0 गुणा घटाओ नहीं कर रहे दोबारा, इत्थे की है 0 बनी हुई है, पहला ही बनाई हुई है, इत्थे 0। अच्छा एक चीज़ है ये तो 0 बन गया, इस एलीमेंट की जगह आपको सोचना पैना, इस एलीमेंट की जगह सोचना पैना। जे राजे तुहानूं आ रही है कन्फ्यूजन, तो सिंपली ये कॉलम ऑपरेशन दो लाए हुए हैं, जिमें मर्जी ला लो। कॉलम ऑपरेशन तो लाने आते हैं ना, वो तो डर की गल ही नहीं है। जिमें मैं कर देना, इत्थे 0 लिखती, इत्थे 0 लिखती, इत्थे मैं सीधा 0 लिखन लगा सी, पर इत्थे नहीं लिखनी सी,
एक टाइम दो थोड़ा जिहा, आपे तुहानूं पता लगन लग जाऊगा भी किहड़े एलीमेंट्स ते इफैक्ट पैंदा किहड़े ते नहीं पैंदा। पहला करोगे हुणे करन लग जाओगे ये चीज़ां तां गलती कर लोगे। सो पहला सिंपली कॉलम ऑपरेशन लाओ, देखो किवें इत्थे देखना ना की बनदा, C2 ਨੂੰ 3/2 ਨਾਲ प्रोडक्ट करके C3 च ऐड करना, C2 ਨੂੰ 3/2 ਨਾਲ प्रोडक्ट किया की बनूगा 0, ਇਹਦੇ ਚ ऐड करोगे 0, ਇਹਦੀ ਗੱਲ आ गई की बनूगा C4 चों C2 कटो, C4 चों इनू कटो की आऊगा -2, ठीक है जी। अच्छा हुण यही ऑपरेशन है जिहड़ा तुसीं मगरली मैट्रिक्स ते लाउणा, बड़ा लंबा चौड़ा करना, बड़ा लंबा चौड़ा करना। हुण मेरे को मैनूं ये उम्मीद आ भी एक अद्धा स्टूडेंट आऊगा सर इन्ना औखा नहीं हुंदा साथों इन्ना कुछ नहीं हुंदा, साथों इन्ना कुछ नहीं हुंदा, पर बेटा तुहानूं करना पैना, गुरबाणी च लिखी है ये भी जे कोई काम गलत पै गया उन्होंने खुश होकर करो ताकि थोड़े भी काम आवे तो किसी होर दे भी काम आवे। फिर की सीगा 1 ते 1 सी गलत ना होए 1 नहीं। अच्छा ये ऑपरेशन लाना हम ए वाला ते ए वाला। अच्छा की चेंज किया 3 ते 4, सो 2 तो पहले नौवें ले लो, ये चीज़ां टाइम बचा जाएगा। कई कंसैप्ट वीक होने पे है, कई बच्चे ये बहुत टाइम लाते हैं, C1 बारे सोचण बैठ जाएंगे, सोची जाएंगे सर जा फरकी जाएंगे, सोची जाएंगे, फिर पता लगता नहीं ऑपरेशन तो C3 C4 ते लाया पहले तो कंसैप्ट ते थोड़े बच्चे छेती पैकट करनगे, थोड़े टाइम हो गए। C3 ते C2, C2 ਨੂੰ प्रोडक्ट करनी है 3/2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ करो 3/2 इसे प्रोडक्ट की ऐड किया 3/2 -2 किया हुआ 2 3 -4 -1/2 है ना, ते फिर 3/2 0 च ऐड किया 3/2 इथे 1 लाने च 0 ये हो गया C3। हुण C4 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ करना किवें करिए C4 ਤੇ C2 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, चलो ये भी गल बन गई, इधर ये 0 बन जाऊगा, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ -1, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 0, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 1। ਹੁਣ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੋ ਕੇ ਕਾਲਮ, ਜੇ ਕਾਲਮ ਕੀਤੇ ਮਗਰਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਰੋ ਕੀਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। थोड़े जे बच्चे जिहड़े उन्होंने शायद लगता होगा कि अपना जिहड़ा क्वेश्चन आ भी ओके आ समझ लग कर ली, उधर कॉलम लाई जाने उधर रो लाई जाने उन्होंने तां छेती समझ लग जाती है, उन्होंने प्लस 2 थोड़ा जिहा ज़्यादा पढ़िया होंदा। बहुत बच्चे ये जिहे जिन्होंने हजे तक नहीं पता लगे हम भी करना की, तो आपां नूं वो भी देखने पैंदे हैं, तो थोड़ा जिहा सबर करके लेक्चर देखा करो। R1 C1 ते C3 नूं ना C3 ते C4 नूं मैं चेंज करना पैना की आऊगा 1 0 0, पहला तो 2 लिख लो है ना, इन्होंने चेंज कर दो 0 0 -2 0 0 0, क्योंकि मैं अगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी चाहना, तो इधर भी पहली मैट्रिक्स उमें रह जाऊगी, कॉलम ऑपरेशन क्योंकि मगरली ते लाने हैं, सो मगरली मैट्रिक्स बाद की करना इन्हां दोवां नूं इंटरचेंज, पहले दो तो उमें लिख दो 1 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 1 -1/2 3/2 1 0। हुण एक ऑपरेशन रह गया, थर्ड दोनों -2 नाल डिवाइड कर दो, की आऊगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। लो जी नॉर्मल फॉर्म बन गई, ये बन गई आइडेंटिटी, इस तो बिना बाकी सारे की है जीरोज है। तो सेम
थर्ड रो माइनस 1/2 ना, इधर प्रोडक्ट करो 1 0 0 माइनस 3/2 1/6 0 माइनस इतने आएगा 3 0 1 ए उमें पे रहने दो 1 1 0 माइनस 1/2 0 1 माइनस 1 3/2 0 0 0 1 0 0 1 0 लो जी गल खत्म हो गई। ये ताड़ी बन गई मैट्रिक्स। ये ताड़ी आ गई नॉर्मल फॉर्म, ये ताड़ी आ गई पी, ये पई है ताड़ी ए एंड ताड़ी जेडी ताड़ी पई है क्यू। ठीक है, इदा क्वेश्चन तुसीं करने आ। देखो हुण मैं तुहानूं एक्सरसाइज दिखाना। पहला क्वेश्चन, इज दिस मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू I3। इक्विवेलेंट का मतलब की होंदा, ये जिहड़ा साइन पाउने आ ना ये वाला, इहनूं इक्विवेलेंट कहंदे आ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। एक मिनट, पहली एग्जाम्पल रो भी लाते कॉलम भी लाते। सो जो भी इक्विवेलेंट कह रहे हैं टू I3 राजे, वैसे कल्ले इतने इक्विवेलेंट की गल होंगी है ना, वह मतलब होंगे भी रो भी ला सकते हैं कल्ले कॉलम भी ला सकते हैं। पर जिमें आप नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब नाल इन्हां दा देखिए राजे, मैं जो तुहाडी तैयारी करवाना ना, मैं तैयारी करवाना तुहाडी चैकरां दे हिसाब नाल। जिवें चैकर चलते हैं अजकल के टाइम च, मतलब 20% चैकर आ जिहड़े वो इहो जिहे आ जिहड़े पूरी तरह किताब ते लिमिटेड हो चुके हैं। जे उन्होंने जो किताब च लिखिया जे वो उन्होंने ना मिलिया उन्होंने कांटा मार देना तुहाडे, तां मैनूं मजबूरन किताब के हिसाब नाल चलाउणा पै रिहा। अदरवाइज मैं टोटली फ्री होकर चलाउंदा सीगा पहलां, जिवें भी चलदा चलण दो। इक्विवेलेंट वैसे सिंपली देखा वे इक्विवेलेंट का मतलब ये होंदा रो इक्विवेलेंट कॉलम इक्विवेलेंट, चाहे रो ऑपरेशन ला दो चाहे कॉलम ला दो, कोई फर्क नहीं पैना चाहिए बेसिकली। पर जे कोई वो जिहा चैकर आ गया जिन्हें एक किताब मूहरे रख के की, उन्हें डिमांड करनी है कॉलम नहीं लाए रो नहीं लाए, फिर पंगा पै जाना। जिमें किताब च अपनी मजबूरी आ उवें करते रहो। मैं ये सलाह देना, इक्विवेलेंट का मतलब वैसे यही होंगे कि भावें रो ला दो कॉलम ला दो, एक गल आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, वो बनी जाती होंगी है, कई नहीं भी बनती। पहली एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, उस तो बाद दूसरे क्वेश्चन च रिड्यूस द नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल फॉर्म जी बनाई है रैंक कितना, पहले मैंने एक गल दसो कि ये जी पूरी मैट्रिक्स पई आ रो इक्विवेलेंट फॉर्म है? पहली रो च पहले नॉन जीरो एलिमेंट तो पहला पहली रो च पहले नॉन जीरो एलिमेंट तो पहला जीरोस की गिनती कितनी है? जीरो। इत्थे एक आगे दो, हाँ फिर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म है जी रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी होंगी है कि एक कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म है। तुसीं कहोगे कीती नहीं है जी, ठीक है रहने दो, जो की उदों डिस्कस कर लांगे। फिर मान के चलो भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म है जी, उस हिसाब नाल इहदा रैंक दसना होवे, नॉन जीरो रोज कितनी 1 2 3, थर्ड रैंक 10 रैंक आ गया। जे देखा जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किन्ने क्रॉस किन्ने दी बनती है 3 क्रॉस 3 दी, सो 10 रैंक आ गया। किन्ने भी तरीके है चेक करने दे, माइनर कढ़ सकते हैं कोई 4 ऑर्डर का माइनर, 3 ऑर्डर का कोई, देखो 4 ऑर्डर का तो माइनर बनना ही नहीं है। 4 सब मैट्रिक्स सब तो बड़ी कितनी लगूगी, ये छोटे एलिमेंट जिन्नी, यानी कि 3 क्रॉस 3 की सब तो बड़ी मैट्रिक्स बनूगी। हम मैंने दसो 3 क्रॉस 3 का कोई माइनर है जिहदा डिटरमिनेंट कोई माइनर है जो नॉन जीरो हो, मतलब 3 क्रॉस 3 की सब मैट्रिक्स है जिहदा डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो हैगी है। आ देखो जिन्ने मर्जी तरीके चेक कर सकते हो, तुसीं कोई मर्जी ला सकते हो, जिहड़ा मर्जी ला लो। हो गया खत्म, चलो आगे। अच्छा, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है राजे सारे मैंने दिख रहे हैं, ये तुहानूं प्रॉब्लम आ सकती है मे बी कुछ भी नहीं,
ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਸਾਰੀ 7C ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ।